ठीक है guys, so what we will do uh, uh, today is that we will try to cover and start from where we had left the last time. ठीक है, लास्ट टाइम जहां भी हमने चीजें छोड़ी थी वहीं से हम रिपिक करें. ठीक है, which is which is uh, the last time we were covering uh, I believe sliding window yeah, the last session. ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो में हमने हमने क्या कवर करा था, तो मैं एक बार क्विक रिकैप कर लेता हूँ. ठीक है, ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो के बारे में हम बात करते हैं. जस्ट अ क्विक रिकैप, स्लाइडिंग विंडो होता है क्या हमने कवर करा था. स्लाइडिंग विंडो क्या होता है कि एक एरे है नंबर्स का, लिस्ट 7,4,7,23, 12, 3 एंड सो सो फोर्थ. ठीक है, ऐसे करके एक अगर एरे है, ठीक है, या एक स्ट्रिंग है, वैसे कुछ भी है. ठीक है, मतलब विद एन एरे और स्ट्रिंग, what the sliding window do is that what it, it maintains uh, it maintains a window. एक ऐसे एक विंडो मेंटेन करता है. फॉर एग्जांपल जैसे कि 4 का विंडो मेंटेन करना है आपको फॉर सम रीजन, तो एक विंडो मेंटेन करता है और इस विंडो को शट करता रहता है. Keeps shifting the window, right? That is what typically your uh, sliding window does, right? We covered a few problems also along that. ठीक है, uh, अगर मैं quickly mm, if I were to quickly summarize the kind of problems that we covered is that we covered some problems on arrays. For example, we had to find the uh, smallest uh, sub array whose sum of elements is greater than or say or greater than a certain number, or say equal to a certain number or closest to a certain number, or we had to find a sub array whose sum is closest to zero, right, or whose sum is zero. ऐसे करके क्वेश्चन हमारे पास थे हमारे पास. ठीक है, what we were doing is that हम effectively कर क्या रहे थे, अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ. ठीक है, हमें तो हम कर क्या रहे थे कि हम पहले जैसे कि हमें वी हैड टू फाइंड the pair which is sorry, the sub array which whose sum is closest to um, mm, say 15. ठीक, तो हम क्या करते थे कि हम एक typically what we used to do is कि हम एक and this used to happen on a sorry on a sorted array. ठीक है, तो हम एक विंडो ले लेते थे. ये sorted नहीं है अनफॉर्चुनेटली. ठीक है, but what he used to do is कि हमें मैं एक बार इस हाँ sorry, because I think I got a little confused with what we covered yesterday. My multiple pointers के नाम बातें करने का था rather than sliding window पे. I'm so sorry about that. I lost I got lost a little bit. ठीक है, but हाँ मतलब we were talking about हमें sliding window के बारे में बात करनी था rather than multiple pointer के. And the sliding window में what was the question that we covered? मैं question भूल रहा हूँ that we covered last time. Unfortunately, I'm forgetting the question. कहीं तो मैंने लिखा होगा उसको. Just give me a second. I'll inform you. मैं बताऊंगा. हम्म, हाँ ठीक है, sorry. I'll reframe the question that we had covered last time.
ठीक है। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, वैसे यहाँ पे सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। कि we used to get an array, ठीक है, एक array होता था, it did not have to be sorted, ठीक है, it could have been anything, ठीक है। And what we had to do is that we had to find the longest set of consecutive numbers यहाँ से उठाने हैं। For example, ये 3 consecutive हैं, ठीक है, ये 3 consecutive हैं, so on so forth, ठीक है। So we had to find the subset of say 3 numbers या फिर 4 numbers या जो भी हो, ठीक है। We have to find the sub array of 3 numbers, for example, या k numbers which had the largest sum, ठीक है, जिसका हम सबसे largest हो, ये हमें ढूंढना पड़ता था, ठीक है। So what we used to do here is that we used to maintain we used to just a second we used to maintain a window of 3 elements, ठीक है। इनका हम सम निकाल के रखते थे, फॉर एग्जांपल इनका सम जो है -8 है, ठीक है, और इसको हम रखते थे कि ये मैक्सिमम सम है। एंड देन वी यूज्ड टू remove this element and add this element, ठीक है, ये नया एक एलिमेंट ऐड हो जाता है उसमें, ठीक है। विंडो हमारा यहाँ से यहाँ स्लाइड हो जाता है, ठीक। सो नाउ द सम इज इक्वल टू माइनस -8 में से -3 रिमूव करेंगे तो इट विल बिकम -5 एंड यू ऐड 122 तो इट बिकम्स 118, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। फिर आप ये वाला एलिमेंट रिमूव करते हैं, ठीक है, फिर ये एलिमेंट ऐड कर लेते हैं, your window slides to this now, ठीक है। So now it becomes इसमें से -6 आप हटाते हैं तो it becomes 124 प्लस आप करते हैं 56 तो it becomes around 180, ठीक, 180 के आसपास आपका सम आ जाएगा, ठीक है। एंड देन अगेन आप इसमें से 1 हटा लेते हैं, 179 हो गया, उसमें 4 जोड़ लेते हैं तो ये 193 हो गया। तो न्यू विंडो, द विंडो कीप्स स्लाइडिंग एंड 183 हो गया, ठीक है। and new sums keep generating, ठीक है, and we maintain the highest sum somewhere, ठीक है। जैसे ही हमें दिखता है कि नया हाईएस्ट आ गया we just replace the uh, new highest there, as well as we maintain the indexes of कि भाई अभी तक का हाईएस्ट का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है और एंडिंग इंडेक्स क्या है, that's it, ठीक। So this is what effectively sliding window was, just a quick recap, and now I you want to go in deeper into this, okay, we will try to use sliding window on on an on a string now, ठीक है। अब हम string पे बात करेंगे, ठीक है। तो typically एक बहुत सिंपल सा एक फर्स्ट क्वेश्चन टिपिकली स्ट्रिंग में ये होता है, ठीक है, जिसकी भाई first question is typically this की find the I'm actually writing the question as the top, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो the question is find the longest substring that contains contains distinct characters, ठीक है। ये हो गया find the longest substring that contains distinct characters, ठीक है। In longest substring of a string that contains distinct characters. We had discussed this problem earlier, एक बार थोड़ा सा हमने डिस्कस तो करा हुआ ही है, ठीक है, I remember for a fact, ठीक है। We had discussed this problem earlier a little bit, ठीक है, बट हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। So the for example जैसे कि hello there is a string, यही हमने स्ट्रिंग पहले भी डिस्कस किया था एक्चुअली। Hello there is a string and we have to find the yeah हाँ ठीक है चलो, we have to find the longest string out of it, continuous substring निकालना है जो कि आपका सारे कैरेक्टर्स इसमें डिस्टिंक्ट हो। व्हाट आई कैन सी इज की भाई h जो है सबसे पहले ऐसे देखेंगे, h डिस्टिंक्ट अपने आप में, ठीक, e भी डिस्टिंक्ट अपने आप में, l भी डिस्टिंक्ट अपने आप में, तो थ्री लेटर्ड एक हमें सीक्वेंस मिल गया है, एक सबस्ट्रिंग मिल गया है 3 कैरेक्टर्स का जो कि डिस्टिंक्ट है। बट l एक और आता है जो इसके बाद, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं रह जाता, ठीक है। सो नाउ इट इज नॉट डिस्टिंक्ट एनीमोर। सो व्हाट वी डू इज एंड सो ऑन, ठीक है। तो फिर हमें फिर यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। then we start from here again, ठीक है। तो we'll say कि भाई L is distinct, ठीक है, इसके पहले के तीन लेटर्स हमने उड़ा दिए, ठीक है।
L is distinct, O is distinct, ठीक है, ये नॉट रिपीट नहीं हो रहा, T is distinct, H is distinct, E is distinct, R is distinct, अभी तक कुछ भी रिपीट नहीं हुआ है। आगे अगला कैरेक्टर भी अगर रिपीट हो रहा है, ठीक है, and so we'll ignore, ठीक है, and we eventually end up as, we'll see कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है, but we'll eventually end up as this is the लार्जेस्ट सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग ऑफ दिस स्ट्रिंग, ठीक है, इसका सबसे लार्जेस्ट सबस्ट्रिंग ये है जहाँ पे सारे कैरेक्टर्स यूनिक हों, ठीक है, सो वी एंड अप विद दिस, ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, ठीक है, मैं अगर और एग्जांपल्स आपको दूं तो और डिटेल में क्वेश्चन को कह रहा हूँ डिस्कस करूँ, तो वी हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग मतलब इस स्ट्रिंग का कोई भी ये एक सबस्ट्रिंग है एंड सो ऑन, तो उसमें कैरेक्टर्स को बिना चेंज किए उसमें से कोई भी कैरेक्टर्स, 5 कैरेक्टर्स कॉन्सेक्यूटिवली या 3 कैरेक्टर्स कॉन्सेक्यूटिवली पुल आउट करके एक सबस्ट्रिंग बनता है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड सच लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग जहाँ पे आपका where I think the all the characters are unique, all none of the characters are repeated, ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आपके साथ, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक लॉन्गेस्ट सब सब, ठीक है, या सब स्ट्रिंग कर लेते हैं, ठीक है, मान लो ये एक हमारे पास आठ, ठीक है, 8 कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, थोड़े से कैरेक्टर्स को हटा देते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है, अच्छा सॉरी, अब ठीक है, सो लेट्स से दिस इज द स्ट्रिंग, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग करके एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एंड व्हाट वी हैव टू डू, इसमें से हमें सबसे बड़ा सब स्ट्रिंग निकालना है जिसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा, तो अगर हम देखेंगे तो इवेंचुअली विल हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू इट, बट दैट प्रोग्राम विल गिव यू एन आउटपुट एज, ये आएगा आउटपुट लॉन्गेस्ट, ये आ जाएगा आउटपुट, दिस इज फ्रैंकली स्पीकिंग दिस इज द लॉन्गेस्ट substring inside this entire string जिसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक, अब एक और अगर एम ले तो मान लो कि क्या, ठीक है, इसमें लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग क्या है जिसमें कोई भी कैरेक्टर नहीं हो रिपीट नहीं हो रहा, इसमें एफ ही है, अपने आप में एफ है, ठीक है, तो नो अदर नो अदर सबस्ट्रिंग है, ठीक है, इसका सबसे लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट सबस्ट्रिंग जो कि जिसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा है, खुद में अपने आप में एफ ही है और कुछ नहीं है, ठीक है, बट if there was, let's say, there was a character G here, ठीक है, and then the longest substring would have been either FG or GF, ठीक है, जो भी बोलना आप, मतलब आप FG कर लीजिए मतलब GF कर लीजिए, ठीक है, तो टिपिकली आप फर्स्ट जो भी फर्स्ट एनकाउंटर होगा, जो भी आप सबस्ट्रिंग सबसे पहली बार एनकाउंटर करते हैं वही देते हैं आप रिजल्ट, तो इसका आपका आंसर एफ जी आएगा, ठीक है, एंड आई होप मतलब दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है, इफ आई वर टू कवर अनदर स्ट्रिंग, ठीक है, ए बी सी डी और लेट्स से कि भाई ABCDEF एंड ABC, ठीक है, अगर ये हम देखें, लुक एट दिस सबस्ट्रिंग, तो यहाँ ABCD है, ठीक है, 4 लेटर है, उसको लेंगे, फिर एक ए आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे ABCDE है, 5 लेटर्स लेंगे, और फिर ए रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 6 लेटर्स यूनिक है, एंड हेंस यहाँ इसका लॉन्गेस्ट सीक्वेंस क्या होगा, ABCDE वुड F वुड बी लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग जिसमें सारे कैरेक्टर्स यूनिक हैं, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सो फार, ठीक है, ठीक है, नाउ जस्ट टू ठीक है, just a second, hmm. Hmm. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि कैसे करेंगे इसको सॉल्व, हाउ वुड यू टिपिकली सॉल्व इट, ठीक है, तो एक थिंक अबाउट इट फर्स्ट, एक बार टेक नेक्स्ट 10-15 मिनट्स टू थिंक अबाउट इट,
एंड एक बेसिक सॉल्यूशन पहले निकालने की कोशिश करते हैं, सबसे बेसिक की जितने लूप्स हो सके सारे लूप्स लगा के एक बेसिक सॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो निकालने की कोशिश करते हैं, एंड देन वी विल मूव ऑन टू अ स्मार्टर सॉल्यूशन. थिंक अबाउट अ बेसिक सॉल्यूशन कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लूप्स को यूज करके कैसे हम निकाल सकते हैं. तो एक बार हम आई बिलीव मतलब अगर गिवन थॉट ठीक है यू मस्ट हैव कम अप विद अ वेरी बेसिक सॉल्यूशन कि ऐसा करते हैं कि लेट्स फाइंड बेसिक सॉल्यूशन देखते हैं. आई विल नॉट कोड द बेसिक सॉल्यूशन ठीक है, बट हम बस डिस्कशन करेंगे ठीक है. बेसिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन इज टिपिकली मतलब नॉट अलाउड इन इंटरव्यू. अगर आप ऐसा सॉल्यूशन देते हैं इंटरव्यू तो बिलीव मी इंटरव्यूअर के लिए इंटरव्यू वहीं पे खत्म हो चुका है. If he's polite, if he's a nice guy, and if he or she does not value their own time, that is also necessary. Take it. If typically if they value their own time, they will end the interview right away. If they don't value their own time, बहुत time है life में, then they might continue for around 10-15 minutes कि जब भी जब तक इंटरव्यू शुरू तक देख लेते हैं चलो ठीक है. बट यू लॉस्ट ऑल द चांसेस देन इट्स ठीक है. बट फिर भी एक खराब सॉल्यूशन देखते हैं कि द सॉल्यूशन दैट इज नॉट अलाउड इन इंटरव्यूज क्या है ठीक है. यू आर रादर हियर मी आउट गाइस ठीक है कि जब आप किसी इंटरव्यू में हैं ठीक है एंड देन यू आर बेटर ऑफ बाय सेइंग कि ना डीएस नहीं आता है ठीक है. यू स्टिल माइट हैव अ 2% चांस 3% चांस या 5% चांस ऑफ क्रैकिंग इंटरव्यू ठीक है. मतलब अगर नहीं आता तो ऑब्वियसली मतलब अगर डीएसएल क्वेश्चन पूछ रहा है देन अगर आपने बोल दिया कि नहीं आता तो ऑब्वियसली मतलब इट इज हाईली अनलाइकली कि उसके बाद भी आपका सिलेक्शन हो ठीक है. बट स्टिल इट इज बेटर टू से भाई डीएसएल को नहीं आता है मुझे अगर आप rather than approaching it through a very random method or very random ऐसे बहुत लंबा सॉल्यूशन देने की जगह ठीक. अगर डीएसएल को कराओगे तो आपको डीएसएल को थ्रू ही बेटर बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ही सॉल्यूशन देना पड़ेगा. कूल. ठीक है. सो ठीक है. I guess we will discuss like uh, the basic solution to this. Uh, will not try to code this solution. ठीक है, we'll just discuss कि भाई how to implement it. That's it. A simple solution would be to भाई generate all possible substrings. ठीक, जितने भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है यहाँ से सारे कॉम्बिनेशंस आप ढूंढते चले गए ठीक है. यानी आपने पहले यहाँ से स्टार्ट करा एच के कॉरस्पॉन्डिंग कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं. तो एच अपने आप में एक सबस्ट्रिंग हो सकता है, एच ई अपने आप में एक सबस्ट्रिंग हो सकता है, एच ई एल अपने आप में एक सबस्ट्रिंग हो सकता है, एच ई एल एल अपने आप में एक सबस्ट्रिंग हो सकता है, एच ई एल एल ओ दिस कुड आल्सो बी अ सबस्ट्रिंग, एच ई एल एल ओ टी कैन बी अ सबस्ट्रिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो व्हाट हैपेंस इज कि अगर लेट्स से कि भाई if the string has n characters, you start with h first ठीक है,
and it will give you n-1 या n ही बोल देते हैं, ठीक है, n-1 भी क्यों, ठीक है, n possible string substrings, ठीक है, that can start with h, ठीक है, then there are e से start होते हुए आपको n-1 substrings मिल जाएंगे, ठीक है, e, el, ell, ello and so on so forth, ठीक है, ऐसे ही आपको L से स्टार्ट होते हुए अगेन n-2, फिर अगले वाले L से स्टार्ट होते हुए n-3 and so on so forth, ठीक है, so the number of possible substrings are actually are n स्क्वायर के आसपास, ठीक है, n plus n-1 से लेके 1 तक, यानी 1 से लेके n तक सम ले रहे हैं, which is equal to typically n into n plus 1 by 2, ये होता है typically. These many combinations are possible, ठीक है, so basically which means that n square combinations are possible, ठीक है, अगर combination आप कोई निकाल रहे हैं, कोई substring आप निकाल रहे हैं, वो एक loop चलाकर ही substring निकालेंगे आप. Just a second, I think network is patchy for a bit, just please give me a second. Yes, so I think you all can hear me now. Okay. So I was talking about कि भाई अगर कोई string पड़ा है आपके पास, let's say कि I have a string A B C D A B or something like this, ठीक है, and A B C D A B X Y Z or something like this, ठीक है, so what will happen is कि number of combinations, the number of substrings that I can generate out of it are कि भाई a substring that starts with A, ए से स्टार्ट होकर कितने सबस्ट्रिंग्स हम बना सकते हैं, ए बना सकते हैं, ए बी बना सकते हैं, ए बी सी बना सकते हैं, ए बी सी डी बना सकते हैं, और क्या ए बी सी डी ए बना सकते हैं, ए बी सी डी ए बी बना सकते हैं, ए बी सी डी ए बी एक्स बना सकते हैं, and so on so forth. So I can create n such substrings that start with a, ठीक है, अगर n लेटर्स हैं तो a अपने आप में एक, ठीक है, फिर a b फर्स्ट एंड सेकंड लेटर, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव फिफ्थ nth लेटर तक, ठीक है, तो n पॉसिबल कॉम्बिनेशंस a से स्टार्ट होते हुए पॉसिबल है, ठीक है, b से स्टार्ट होते हुए, ठीक है, just a second, I hope I'm audible. ठीक है, सो बी से स्टार्ट होते कितने पॉसिबिलिटीज हैं, बी से स्टार्ट होते बी अपने आप में, बी सी अपने आप में, बी सी डी अपने आप में, एक तीसरा कॉम्बिनेशन हो गया, सो सो फॉर, तो n-1 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है. सिमिलरली सी से स्टार्ट होते कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, तो n-2 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है. तो ऐसे करते करते फाइनली आप 1 तक पहुंच जाएंगे. तो इफेक्टिवली द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस दैट आर पॉसिबल आर 1 to n, यानी n into 1 से लेके n तक का सम क्या होता है, n into n plus 1 by 2, यानी n स्क्वायर के आसपास के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं. n स्क्वायर by 2 को n स्क्वायर ही बोलते हैं, ठीक है, n स्क्वायर के आसपास के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, एंड देन ठीक है, n स्क्वायर कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं. तो n स्क्वायर कॉम्बिनेशंस जनरेट करने में कितना टाइम लगेगा आपको, n स्क्वायर टाइम लगेगा, ठीक है. So now what you do is कि फर्स्ट स्टेप आपने क्या करा कि आपने सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल स्ट्रिंग्स जनरेट कर लिए, ठीक है. देन व्हाट यू डू इज कि you evaluate all these substrings for if for unique characters, ठीक है, and maintain the highest length
फॉर, ठीक। तो आप अब क्या करते हैं, हर सबस्ट्रिंग को इवेलुएट करते हैं, ठीक है। यू प्रोसेस इट, यू प्रोसेस ऑल दी सबस्ट्रिंग्स फॉर कि भाई इसमें सारे कैरेक्टर्स यूनिक हैं कि नहीं है। कैसे प्रोसेस करोगे, एक हैश मैप बना लेना, मैप बना लेना, डिक्शनरी मैप हैश जो भी बोलना है, ठीक है। एक बना लेना कि भाई इस सबस्ट्रिंग में कितने कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो इस सबस्ट्रिंग में ए है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, तो ए 1 टाइम्स है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। ऐसे बना लेना आप, ठीक है। मैप बनाने में ऑर्डर ऑर्डर एन टाइम लगता है, ठीक है। तो दिस, और उसके बाद उसको चेक करने के लिए तो बस कुछ नहीं है, एक चेक है कि भाई हाईएस्ट लेंथ अभी तक क्या है, अभी तक क्या हाईएस्ट लेंथ तीन तीन कैरेक्टर्स की है, और इसकी लेंथ अगर 5 कैरेक्टर है तो भाई ये बड़ा है ऑब्वियसली, ठीक है। दैट इज लाइक 1 यूनिट टाइम, ठीक है। तो आपको जो भी हैश मैप्स बनाने हैं, दे विल टेक ऑर्डर एन टाइम, ठीक है। तो हर स्ट्रिंग को ऑर्डर एन टाइम और लगेगा आपको प्रोसेस करने में। तो ओवरऑल जो है आपका ऑर्डर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n into n, यानी n क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा। n स्क्वायर स्ट्रिंग्स पॉसिबल हैं, और हर स्ट्रिंग को इवैल्यूएट करने के लिए आपको ऑर्डर n टाइम लगेगा, तो n क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको लग जाएगा। दिस इज अ बेसिक सॉल्यूशन, and मतलब this is a solution that I will not go into, but I will not try to code this solution. This is basic solution, and has a very high time complexity and very, I would say कि भाई unoptimized also. तो हम इसके optimized solution की तरफ चलते हैं, ठीक है। And let me just give you a hint, ठीक है, कि but before that just take another 10-15 seconds to absorb the solution कि भाई क्या लिखा हुआ है आपके पास, and if you want to take any notes so far, you're welcome. ठीक है, आई बिलीव मतलब कि यहाँ तक थिंग्स लुक बेटर नाउ, ठीक है। एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, विच इज कि भाई हम स्लाइडिंग विंडो से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू, क्वेश्चन एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। वी हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग हियर, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है LOTR, जहां पे कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, देयर आर नो, वेयर ऑल द कैरेक्टर्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस यूजिंग स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। I'm not going to coding the solution for this, but we'll cover it ऊपर ऊपर से मोटा मोटा, ठीक है। So what we will do is कि we will create we will maintain sorry, let's say कि भाई let's say we will maintain index a, index क्या बोले, इंडेक्स बोलते हैं कि इंडेक्स इंडेक्स of index start of longest substring, ठीक है। एक हम ये इंडेक्स मेंटेन करेंगे, ठीक है, which is the index is the starting of this longest substring, और एक इंडेक्स और मेंटेन करेंगे which is the index end of the longest substring। अभी हम इनिशियलाइज कर लेते हैं इसको 0 0 से, ठीक है। and then what we will do is कि we will create a sliding window। मैं पहले टेक्निक डिस्कस कर लेता हूं एक बार, ठीक है। we'll इसी पे टेक्निक डिस्कस कर लेते हैं, हेलो देयर पे, ठीक है। ये स्ट्रिंग उठा लेते हैं, इसी के ऊपर टेक्निक डिस्कस कर लेते हैं। What we will do is, how we'll also see how to code this, ठीक है। What we will do is कि we will uh, we will be we will be थोड़ा सा tricky है to understand this, so focus on what I'm saying, ठीक है। कि we will start from here, ठीक है, and we will keep adding characters, ठीक है। This is the longest substring so far, अगला कैरेक्टर भी ऐड कर लिया, ये भी लॉन्ग, यहाँ भी यूनिक है, ठीक है।
अगला कैरेक्टर भी ऐड कर लिया, यहाँ तक भी यूनिक है, ठीक है। फिर अगला कैरेक्टर हमने ऐड किया तो अब यूनिक नहीं रह गया, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू इज कि वी विल डिलीट ऑल द कैरेक्टर्स टिल हियर, यानी एच को डिलीट करेंगे, ई को डिलीट करेंगे, एल को डिलीट करेंगे, इन तीनों कैरेक्टर्स को डिलीट कर देंगे टिल द टाइम कि भाई जो जो अब हमारे पास जो सबस्ट्रिंग बच गया वो यूनिक रह जाए, ठीक है। सो व्हाट वी आर इफेक्टिवली डूइंग इज कि स्लाइडिंग विंडो का साइज हम बढ़ा घटा रहे हैं, ठीक है। आई एम रिपीटिंग ऑल ओवर अगेन, ठीक है। देन व्हाट वी आर डूइंग इज कि the we are increasing or decreasing the size of the window depending upon whether we are encountering all distinct or all non-repetitive or all unique characters. मतलब अगर भाई what I'm saying is कि अगर अपने को पहला कैरेक्टर ये हो गया, ठीक है, अगला कैरेक्टर भी यूनिक है, नॉन रिपीटेटिव है, तो हम विंडो का साइज बढ़ा लेंगे, ठीक है। अगला कैरेक्टर भी नॉन रिपीटेटिव है तो विंडो साइज और बढ़ा लेंगे, नाउ दिस इज द विंडो, ठीक है। अगला साइज अगला कैरेक्टर अगर रिपीटेटिव है तो हम विंडो साइज घटा देंगे, ठीक है। तो घटाएंगे कहां से, तो घटाते हैं हम स्टार्टिंग से हमेशा, विल ऑलवेज डिक्रीज फ्रॉम दिस एंड एंड विल इंक्रीज ऑन दिस एंड, ठीक है। नहीं, इस एंड से डिक्रीज करते हैं और इस एंड से इंक्रीज करते हैं। तो विल डिक्रीज द साइज ऑफ द विंडो टिल द टाइम वी से कि ऑल द कैरेक्टर्स आर यूनिक। तो एल रिपीट हुआ था तो यहां से लेकर डिलीट करना चालू करेंगे हम, ठीक है। एंड विल डिलीट एच, will delete E, will delete L, and now we have reached a size, window size of 1 where all the characters are unique, ठीक है। We'll start all over again, ठीक है। फिर अब हमारा विंडो साइज ये है, अरे यार क्या हो रहा है, अब हमारा विंडो साइज इज जस्ट वन कैरेक्टर, ठीक है, ये है हमारा विंडो साइज, ठीक है। We've started from here, we've started from here, ठीक है। क्या हो रहा है, आई डोंट नो मैन। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ठीक है, एल है हमारा विंडो साइज, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है वो यूनिक है बिल्कुल, हम यानी हमारे पास नए नए कैरेक्टर्स आए जा रहे हैं यूनिक, तो हम विंडो का साइज बढ़ाते जा रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इज टी, नेक्स्ट कैरेक्टर इज एच, नेक्स्ट कैरेक्टर इज ई, नेक्स्ट कैरेक्टर इज आर, ये सारे यूनिक हैं अपने आप में, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। हम विंडो का साइज बढ़ाते जा रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इज ई, तो हमने विंडो का साइज बढ़ाया नहीं, बट वी डिड इज कि भाई विंडो का साइज ये रह गया, इस विंडो का साइज को हमने नोट कर लिया कि सो फार दिस इज द लॉन्गेस्ट विंडो दैट वी हैव रिसीव्ड, ठीक है। एल ओ टी एच ई आर, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट विंडो साइज अभी तक के लिए आ गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी डू इज कि भाई अगला रिपीट कैरेक्टर है, तो व्हाट वी डू इज कि वी स्टार्ट डिलीटिंग, ठीक है, जब तक कि हमें ये कैरेक्टर जहां रिपीट हुआ वो कैरेक्टर ना मिल जाए। तो वी डिलीटेड एल, वी डिलीटेड ओ, वी डिलीटेड टी, वी डिलीटेड एच, वी डिलीटेड ई, ठीक है। अब क्या है, नाउ वी आर लेफ्ट विद अ विंडो साइज ऑफ 2, ठीक है, एंड वी नो कि देयर आर नो रिपीट कैरेक्टर्स हियर, ठीक है। एंड देन व्हाट वी डू इज कि वी मूव टू द नेक्स्ट कैरेक्टर, बट नेक्स्ट कैरेक्टर को एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, यहाँ पे एंड हो गया। सो वी एंड इट हियर एंड वी से कि भाई सो फार हमारे पास कौन सा रिजल्ट सेव्ड है, तो हमारे पास लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग का रिजल्ट सेव्ड है, एल ओ टी ई टी एच ई आर, हेंस दिस इज द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग दैट वी गेट आउट ऑफ दिस टिक। I hope this is clear. I'll give you a moment to reflect on what I just said, and then we'll start looking at pseudocode for the same. Interesting problem है. It's a slightly difficult problem statement, especially because स्लाइडिंग विंडो का जो है साइज हम बढ़ा घटा रहे हैं। हम कैसे साइज बढ़ा रहे हैं, कैसे घटा रहे हैं, तो जब भी कोई नया कैरेक्टर आता है, अगर कैरेक्टर यूनिक है तो हम साइज बढ़ाते हैं। साइज हमेशा हम बढ़ाते हैं, हमेशा हमेशा हम साइज जो है राइट हैंड साइड पे बढ़ाएंगे। विल ऑलवेज इंक्रीज द साइड ऑन दी राइट हैंड साइड, ठीक है। एंड विल ऑलवेज, और जैसे कोई कैरेक्टर रिपीट होता मिलता है, देन वी डिक्रीज द साइज ऑफ द विंडो, यानी अपने स्लाइडिंग विंडो के साइज को एडजस्ट करते हैं। तो डिक्रीज कैसे करते हैं, डिक्रीज हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं और तब तक डिक्रीज करते जाते हैं टिल द टाइम वी फाइंड दैट कैरेक्टर, we can find the first occurrence of that character which was repeated. I giving you 30 seconds to think about what I just said, and yes.
I'll give you another example. हम एक और example ले लेते हैं, ठीक है? And then it will be clear. I hope this is clear to everyone so far, ठीक है? Yes, ठीक है? तो एक बार I'll just sharing one more example, ठीक है? Which is कि भाई let's say यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है? इस वाले string पे आ जाते हैं. What we did is कि भाई यहाँ पे हमने एक sliding window बनाया. सबसे पहले A है हमारे sliding window में, गुड ऑल गुड, ठीक है? ए में सारे कुछ यूनिक है. बी फिर हमने बोला कि अगला कैरेक्टर लेते हैं स्लाइडिंग विंडो, बी आ गया, अभी भी यूनिक है. फिर अगला कैरेक्टर लेते हैं, सी आ गया, वो अभी भी यूनिक है. अगला कैरेक्टर लेते हैं, डी आ गया. विंडो साइज हम बढ़ाते जा रहे हैं, अब 4 का विंडो साइज हो गया, अभी भी सारी चीजें यूनिक है. फिर अगला कैरेक्टर उठाते हैं, ए आ गया, ठीक है? अब यूनिक नहीं रहा, ठीक है? तो हमने विंडो को यहाँ पे फ्रीज किया और यहाँ से अब डिलीट करना चालू करा. तो हमने सबसे पहले ये कैरेक्टर डिलीट किया. तो अब हमने देखा कि भाई ये हमारा विंडो साइज ये बच गया है. दिस इज द रिमेनिंग विंडो साइज एंड वी सी कि ऑल कैरेक्टर्स आर यूनिक हियर नाउ. देन वेरी गुड, ठीक है? अब हम वापस से विंडो साइज बढ़ाना चालू कर लेंगे. देन वी इंक्लूडेड बी इन दिस. वंस वी इंक्लूडेड बी इन दिस वी रियलाइज कि अगेन भाई रिपीट हो रहा है. तो हमने रिपीट हुआ, जैसे ही रिपीट हुआ तो हमने विंडो साइज घटाना चालू कर दिया. तो वी डिलीटेड दिस बी, ठीक है? नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस विंडो साइज, ठीक है? हमने बोला बहुत बढ़िया, ठीक है? ये विंडो साइज में अब सब लोग यूनिक है, बहुत बढ़िया, ठीक. हमने अगले कैरेक्टर को लिया, ठीक है? अगेन हमने देखा भाई यूनिक नहीं रह गया, अगेन रिपीट हो रहा है. तो हमने विंडो साइज डिक्रीज करा. नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस विंडो DABC, ऑल गुड, सारी यूनिक है यहाँ पे, ऑसम, ठीक है? Hence we decided to increase the window size all over again. हमने D को भी लेकर आए, हम लोग D को लेकर आए, अगेन हमें दिखा कि भाई रिपीट हो गया. तो अगेन हमने इधर से डिलीट करना चालू करा, इधर से डिलीट करना चालू करा. नाउ वी आर लेफ्ट विद ABCD. ये हमारे पास विंडो साइज आ गया, ठीक है? नाउ वी हैव दिस विंडो साइज ABCD, हमारे पास विंडो साइज है, ठीक. हम लोग बहुत बढ़िया अगला कैरेक्टर लेकर आते हैं. अगला कैरेक्टर हमने डाला E, बहुत बढ़िया, कोई रिपीटिशन नहीं है. हम लोग ये तो बहुत सही चीज होगी. हमने बोला अगला कैरेक्टर एक्सपैंड करते हैं दोबारा विंडो साइज को. विंडो साइज में हम अगला कैरेक्टर लेकर आए, ए रिपीट हो गया, हमने इधर से डिलीट कर दिया. अब फिर अगला कैरेक्टर भी लेकर आए, बी रिपीट हो गया, हमने इधर से डिलीट कर दिया. अगेन हमारा विंडो साइज छोटा भी हो रहा है. अगेन अगला कैरेक्टर लेकर आए, सी रिपीट हो गया, इधर से डिलीट किया, अब नॉन रिपीटेटिव है, बहुत बढ़िया, ठीक है? अगला कैरेक्टर लेकर आए, डी अगेन रिपीट हो गया, तो हमने इधर से डिलीट कर दिया. अगला कैरेक्टर भी लेकर आए, ई अगेन रिपीट हो गया, तो हमने इधर से भी डिलीट कर दिया. फिर हम अगला कैरेक्टर लेकर आए, एफ, नो रिपीटिशंस आर देयर, हेंस द न्यू विंडो साइज इज ABCDEF, ठीक, ऑसम. फिर हम अगला कैरेक्टर लेकर आए, ए, तो भाई रिपीट हो रहा है, तो जो लास्ट सबसे लार्जेस्ट विंडो साइज हमारे पास बचा था which was ABCDEF, इसको हमने बोल दिया कि भाई ये हमारा लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है जिसमें कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा है. नाउ व्हाट आई विल डू, आई होप दिस इज क्लियर गाइस. मतलब आई होप कि भाई मतलब टेक्निक सबको क्लियर है, आई होप. एंड आई होप कि मतलब now that I start to code this out, ठीक है, और start to show you the pseudo code, मतलब you'll not get confused with that. ठीक है, so let's start to see the pseudo code for this, ठीक है? And we will मतलब and this is a very commonly used technique, ठीक है? ये sliding window on a string especially, ठीक है? But definitely slightly difficult problem, but nonetheless we'll try to cover this, ठीक है? तो what we did is कि हमने भाई बोला कि भाई हमेशा जो है मेंटेन करके रखेंगे कि जैसे हमारी ये स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग को ले उठा देते हैं, ठीक है? What we will do is कि we will always maintain, दोनों स्ट्रिंग है यार, फिर ये दोनों पे हम चेक करेंगे, ठीक है? We'll always maintain the starting index. लेट्स से कि अभी तक का लॉन्ग स्ट्रिंग हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है? This is the longest string so far that we have. Let's say, ठीक है? And what we said is कि we will maintain the index of this character, कहाँ गया? Of this character A यहाँ पे and this character E यहाँ पे. We'll maintain the indexes of this, ठीक है? हमेशा मेंटेन कर रखेंगे कि हमारे पास अभी तक जो सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है उसके इंडेक्सेस क्या हैं, ठीक है? This we will this we will maintain, ठीक है? चलो, तो कैसे मेंटेन करेंगे भाई? तो हम एक एक करके मूव करेंगे, जैसे जैसे वैसे मेंटेन करेंगे, ठीक है? नाउ व्हाट वी डू इज कि अब हमें भाई एक और चीज था कि आपको ध्यान होगा तो स्लाइडिंग विंडो को मूव करना होता था, स्लाइड करना होता था. तो स्लाइडिंग विंडो का भी एक इंडेक्स होगा कि भाई अभी स्लाइडिंग विंडो लेट्स से कि ऐसा बना हुआ है, लेट्स से कि राइट नाउ
द स्लाइडिंग विंडो लुक्स समथिंग लाइक दिस। अभी ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, ठीक, समवेयर ऐसा बना हुआ है। तो भाई यहाँ पे भी आपको स्लाइडिंग विंडो के इंडेक्सेस तो मेंटेन करने पड़ेंगे कि भाई अभी उसका स्टार्टिंग इंडेक्स स्लाइडिंग विंडो का यहाँ पे है और एंडिंग इंडेक्स यहाँ पे है, ठीक है। अगला कैरेक्टर अगर रिपीट हो रहा है, अगला कैरेक्टर बी हो रहा है, तो फिर इस इंडेक्स को मूव करना पड़ेगा आगे, यहाँ पे मूव करना पड़ेगा, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हम स्लाइडिंग विंडो के भी इंडेक्सेस को मेंटेन करेंगे। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल से कि भाई दो दो और हम वेरिएबल्स मेंटेन करेंगे। वन इज लेट लो बोल देते हैं, ठीक है, या स्टार्ट बोल लें, या फिर जो भी बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर स्लाइडिंग विंडो लो, ये इस टाइप से बोल देते हैं, ठीक है ना, इज इक्वल टू जीरो। अभी तक तो भाई विंडो जीरो ही है, जीरो से स्टार्ट होगा, इनिशिएट होगा, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो का लो यानी लोअर साइड अभी जीरो पे है, स्लाइडिंग विंडो का हायर साइड भी जीरो पे है, ठीक है। ये हमने बोल दिया स्लाइडिंग विंडो के दोनों इंडेक्सेस, स्लाइडिंग विंडो के दोनों इंडेक्सेस हमने डिफाइन कर दिए, ठीक है। देन व्हाट वी डू इज कि वी से कि व्हाइल, देन वी से कि व्हाइल हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई जब तक, कब तक इस लूप को चलाना, कब तक स्लाइडिंग विंडो को स्लाइड करते करते चेक करते रहना है, जब तक कि भाई स्लाइडिंग विंडो एंड तक ना पहुंच जाए, यानी जब तक कि स्लाइडिंग विंडो आपका यहां तक ना पहुंच जाए, यहां तक स्लाइड करता करता ऐसा ना दिखने लग जाए, यानी स्लाइडिंग विंडो का जो लास्ट वाला इंडेक्स है वो लास्ट इंडेक्स से मैच ना कर जाए, तब तक हमें स्लाइड करते रहना है। यानी व्हाट विल से इज कि विल से कि भाई व्हाइल व्हाइल हाई, सॉरी, स्लाइडिंग विंडो का लास्ट इंडेक्स, ठीक है, हाई क्यों बोलना है इसको, एंड बोल देते हैं, स्लाइडिंग विंडो एंड, स्लाइडिंग विंडो स्टार्ट, स्लाइडिंग विंडो का एंडिंग इंडेक्स या लास्ट बोल देते हैं, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो का लास्ट इंडेक्स, स्लाइडिंग विंडो का लास्ट इंडेक्स जब तक लेस देन या इक्वल टू है किससे, हमारे स्ट्रिंग के लेंथ से, ठीक है, लेंथ से। हमने ये स्ट्रिंग बोला हुआ है, जैसे लेट स्ट्रिंग इज इक्वल टू, ये इनमें से कुछ एक स्ट्रिंग मिला हुआ है, ठीक है ना। हाँ, तो हमको मूविंग विद दैट अजम्पशन, ठीक है, तो हमने उसको एसटीआर बोल रखा है, ठीक है। तब तक हम क्या करेंगे, तब तक डू वी विल तब तक हम ये अपना स्लाइडिंग विंडो अंदर घुमाते रहेंगे, जो भी चीजें हमें फंक्शनलिटीज करनी है वो करते रहेंगे, ठीक है। तो हमें करना क्या क्या है, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज राइट नाउ इज कि भाई व्हाट वी हैव टू डू इज कि अब इसको मेंटेन कैसे करेंगे, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू इज कि भाई कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं स्लाइडिंग विंडो में, क्या है क्या नहीं है, वी विल क्रिएट अ हैश मैप, ठीक है। इसको बोलेंगे हम एक हैश मैप बनाएंगे, ठीक है। कैसा हैश मैप बनाएंगे, तो विंडो हैश, ठीक है, विंडो मैप बोल लेते हैं, ठीक है ना। स्लाइडिंग विंडो के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं वो मेंटेन करते हैं हम इसमें, ठीक है। हम इसमें मेंटेन करेंगे सबसे पहले कि भाई ए, सॉरी, एच है, कितनी बार है एच, ठीक है, ये सब मेंटेन करेंगे हम, ठीक है ना। तो अभी के लिए हमने एम्प्टी स्लाइडिंग विंडो सब इनिशिएट किया है, ठीक है। एंड व्हाट वी डू इज कि नाउ नाउ व्हाट वी डू इज कि भाई कि इफ अब हम चेक करेंगे, ठीक है, कि भाई इफ विंडो इफ विंडो मैप में अगर आपका लेट्स से हाउ टू पुट इट, ठीक है, ऐसे ही करते हैं, चलो ठीक है। विंडो मैप में ये कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, यानी एस टी आर डॉट, सॉरी सॉरी, ठीक है, हमने बोला एस टी आर, हमने अपने ये बोला था, ठीक है। और स्लाइडिंग विंडो का लास्ट कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, लास्ट वाला कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। अगर इसमें एग्जिस्ट करता है, अगर इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, देन देन व्हाट डू यू डू, इसकी अगर इसमें एग्जिस्ट करता है मतलब यूनिक नहीं है, बट अगर नहीं एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करता मतलब वी नीड टू मूव आवर स्लाइडिंग विंडो, वी नीड टू एक्सपैंड आवर स्लाइडिंग विंडो, हमारे पास एक नया यूनिक कैरेक्टर मिल गया है, ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है कैरेक्टर पहले से स्लाइडिंग विंडो में, तो व्हाट यू डू इज कि भाई अगर नहीं एग्जिस्ट करता है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ सारा कुछ, वरना एक पेज में लिखा ही नहीं जा रहा है, ठीक है।
सॉरी, ठीक है। यस, सो वेयर ठीक है। स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर ले। ठीक है, हमने बोला कि भाई अगर स्लाइडिंग विंडो में कैरेक्टर लास्ट वाला एग्जिस्ट नहीं करता है, देन व्हाट वी डू इज कि वी से कि भाई वी विल से कि विंडो मैप में हम क्या करेंगे, वी विल ऐड दिस कैरेक्टर। ठीक है, वी विल ऐड दिस कैरेक्टर, विल से कि भाई इस कैरेक्टर को ऐड कर लो, str के इस कैरेक्टर को ऐड कर लो, लास्ट वाले कैरेक्टर को। ठीक है, ऐड कर लो। एंड क्या ऐड करना है इसमें, इसकी वैल्यू ट्रू कर देना या वन कर देना, जो भी है। ठीक है, इसकी वैल्यू वन कर देना। ठीक है, इसका काउंट हम कर लेते हैं, काउंट हम इसका वन कर देते हैं। ठीक है, अगर कैरेक्टर नहीं एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, एंड व्हाट वी आल्सो डू इज, व्हाट वी विल आल्सो डू, इसकी जो ये जो स्लाइडिंग विंडो का लास्ट वाला इंडेक्स है, इसको भी बढ़ा देंगे, यानी हम स्लाइडिंग विंडो को बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, वी हैव इंक्रीज द इंडेक्स ऑफ द स्लाइडिंग विंडो एज वेल। ठीक है, ऑसम। ठीक है, ठीक है, इधर वेज जस्ट अ सेकंड, एक बार ना हम यहाँ पे इंडेक्स नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे एक और चीज अपने को करनी है, विच इज कि भाई इफ एट द सेम टाइम, इफ अगर भाई मतलब हमने स्लाइडिंग विंडो का हमारे अगर हमारे स्लाइडिंग विंडो का अभी करंट जो लास्ट इंडेक्स है माइनस जो स्टार्टिंग इंडेक्स है, यानी मेरे स्लाइडिंग विंडो की जो करंट साइज है, इफ इट इज इफ इट इज ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन व्हाट, ठीक है, ग्रेटर देन दी भाई ग्रेटर देन साइज ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग जो हमने अभी तक ढूंढा है। ठीक है, यानी कि भाई लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग अभी तक हमने क्या ढूंढ रखा है, ठीक है, हमने ये ढूंढ रखा है। ठीक है, माइनस दिस, छोटा करता हूँ। ठीक है, यानी मैंने जो अभी करंट साइज है मेरे स्लाइडिंग विंडो का, आई होप यू कैन सी दिस, यू कैन रीड दिस ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से राइट नाउ कि मेरा जो स्लाइडिंग विंडो करंट साइज है, whatever the current size of my sliding window is, if it is greater than the longest substring that I have encountered so far, then what I will do is कि I will what I will do is कि I will say कि भाई मेरे को नया स्लाइडिंग विंडो मिल गया है, I have found a new substring, I have found a new substring which is larger than the earlier substring। ठीक है, यानी हम बोलेंगे कि भाई जो इंडेक्स ऑफ लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है, now it starts at the index, now it starts with, so now what I'm doing here is that इसकी हम जो कि हम जो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है उसका स्टार्टिंग और एंड को जो है चेंज कर दे रहे हैं, और उस लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग जो अभी तक हमने एनकाउंटर किया था, दैट इज ऑब्वियसली दैट इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग विंडो। देन व्हाट वी डू इज कि भाई वी से कि भाई जो करंट स्लाइडिंग विंडो है, this is the largest possible substring so far, this is the largest possible substring so far। तो हमने वो इंडेक्सेस दोनों अपडेट कर दिए भाई, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग के इंडेक्सेस अपडेट कर दिए टू द इंडेक्सेस ऑफ द स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, एंड दिस इज इट। ठीक है, और अच्छा बाय द वे, हमेशा जो है आप अगर आपको ध्यान होगा तो, ठीक है, व्हाट वी यूज्ड टू डू इज कि we used to increase the size of the sliding window all the time। ठीक है, हम हमेशा स्लाइडिंग विंडो का साइज बढ़ाते थे। ठीक है, what we will do is कि we will increase the size of the sliding window यहाँ पे। ठीक है, यानी हम स्लाइडिंग विंडो का साइज बढ़ा देंगे। ठीक, we'll say sliding window last is equal to प्लस प्लस। ठीक है, इसका हमने साइज बढ़ा दिया। ठीक है, अगर हमें नया अगर कैरेक्टर हमें मिला है तो। ठीक है, एल्स अगर हमें नया कैरेक्टर नहीं मिला है, ठीक है, देन व्हाट डू वी डू, मैं यहाँ पे कोलन डाल देता हूँ, चलो ठीक है यार। एल्स व्हाट वी डू इज कि वी से इसकी भाई कि अब हम लोअर का साइज बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, लोअर इज इक्वल टू या जो भी है। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट विल डू इसकी हम फर्स्ट से कैरेक्टर हटाना चालू करेंगे, यहाँ से स्लाइडिंग विंडो साइज घटाएंगे,
तब तक जब तक कि हमें जो कैरेक्टर रिपीट हुआ वो उसका फर्स्ट इंस्टेंस ना मिल जाए, तब तक हम उसको साइज को घटाएंगे, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू इज की वी विल से इसकी भाई इफ वी विल चेक, ठीक है, इफ या जो भी हो, कब तक हमें घटाना, तब तक हमें मिल ना जाए, ठीक है। तो हमने जब तक हमें ये कैरेक्टर जिसे हमें जैसे कि वी इनकाउंटर एल हियर, ठीक है, जो रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ से स्लाइडिंग विंडो को डिलीट करना चालू करेंगे। कौन सा एच को डिलीट किया, ई को भी डिलीट किया, एल को भी डिलीट किया, इन तब तक डिलीट करेंगे जब तक कि हमें वो कैरेक्टर का फर्स्ट ऑकरेंस ना मिल जाए। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल से कि भाई वाइल लेट्स से कि भाई स्ट्रिंग का, ठीक है, स्ट्रिंग के ऊपर हम वी विल से कि भाई स्लाइडिंग विंडो का स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग हम स्लाइडिंग विंडो को छोटा करेंगे, ठीक है, इन स्टार्टिंग इंडेक्स इफ इट इज नॉट इट इज नॉट इक्वल टू स्लाइडिंग विंडो का you know that this might be getting a little confusing, ठीक है, because this is थोड़ा सा complicated, ठीक है, but don't worry, I'll repeat this all over again also, ठीक है, and but try to focus on what I'm saying so far अभी तक, ठीक है। तो what we'll do is we will say कि while स्लाइडिंग विंडो का सॉरी स्ट्रिंग में स्लाइडिंग विंडो का फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है, यानी अभी तक का जो स्लाइडिंग विंडो है उसका फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है, अगर हमारे लास्ट कैरेक्टर मैच कर रहा है, अभी हमें एक अगर हम वी जस्ट मूव्ड हियर देन द लास्ट कैरेक्टर राइट नाउ इज द कैरेक्टर दैट गॉट रिपीटेड, तो हम बोलेंगे कि भाई स्लाइडिंग विंडो के का जो फर्स्ट कैरेक्टर है अगर इससे मैच कर गया देन तो वी हैव डिलीटेड द रिपीटेड कैरेक्टर का पहला अकरेंस, ठीक है। अगर नहीं मैच कर रहा है व्हाइल इट डज नॉट मैच till then what you do is you keep deleting characters, कैसे, how will I keep deleting characters? तो I will say कि भाई हम स्लाइडिंग विंडो को आगे मूव करेंगे वन, ठीक है, एंड व्हाट वी विल आल्सो डू इज दैट वी विल डिलीट जो भी हमारे यहाँ पे जो भी कैरेक्टर पड़ा हुआ था इस कैरेक्टर को भी डिलीट करना है, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू इज की वी विल से कि इस मैप में से विंडो का जो मैप चल रहा है हमारे हमने हैश मैप बनाया इसमें से हमने हमने आ, हमने ये वाला स्ट्रिंग निकाला, ये वाला कैरेक्टर निकाला, हमने, एंड व्हाट वी डू इज की इसको हमने जीरो करने की जगह इस वाले कैरेक्टर को हमने इस वाले की को हमने डिलीट ही कर दिया इस ऑब्जेक्ट से हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। आई होप दिस मेक्स सेंस, ठीक है। वी डिलीटेड दिस, ठीक है, ऑसम, ठीक है। एंड व्हाट वी डिड वाज इसकी भाई हमने सॉरी व्हाट वी डिड वाज कि हमने स्लाइडिंग विंडो को अपना छोटा कर लिया, यानी पीछे से इंडेक्स उसको आगे बढ़ा दिया, एंड वी डिड दिस टिल द टाइम कि भाई हमें वो कैरेक्टर ना मिल जाए जो कि रिपीट हुआ है। यानी अगर हमें यहाँ तक स्लाइडिंग विंडो था, अगला कैरेक्टर एल आया, then what you did is कि भाई अब हम यहाँ से डिलीट करना चालू करेंगे। we will delete from here, ठीक है, we will delete h फर्स्ट, ठीक है, मैच कर गया कि l से नहीं मैच किया, we will delete e, हमें मैच मिला क्या, नहीं मिला, we'll delete l, हमें मैच मिला क्या, मिल गया, ठीक है। सो नाउ हमारा स्लाइडिंग विंडो बस इतना सा स्लाइडिंग विंडो बच गया, हमें कितना स्लाइडिंग विंडो बच गया, दैट्स इट, ठीक है। ये इतना ही एक कैरेक्टर का स्लाइडिंग विंडो बच गया हमारे पास, ठीक। So we'll keep deleting till we find the repeated character. ठीक है, and then eventually at the end what we will do is we will say कि भाई ये सब कुछ खत्म होने के बाद जो भी हमारे पास लॉन्गेस्ट ये जब हम मेंटेन करते हैं इंडेक्स ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग मेंटेन कर रहे थे ये हम रिटर्न कर दें। फाइनली वी विल रिटर्न दीज टू, ठीक है। वी विल मतलब I will ignore it for now, ठीक है, कैसे रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, and ignore the exact syntax, but हम ये करेंगे कि भाई हम दोनों इंडेक्सेस रिटर्न कर देंगे। we'll return the index of the highest and these two indexes, the starting index and the ending index of the longest substring, ठीक है। this is what we will do, ठीक है। मैंने deliberately कुछ चीजें इग्नोर करी हैं, ठीक है, कुछ जैसे फॉर एग्जांपल ये while loop है, कहीं कहीं अटक जाएगा, ठीक है, मैंने डेलिबरेटली इग्नोर करी है बिकॉज जस्ट वांटेड टू फोकस ऑन द लॉजिक। ये वाला व्हाइल लूप भी कहीं कहीं अटक जाएगा, एक चीज मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो दो तीन चीजें मैंने डेलिबरेटली इग्नोर करी है, ठीक है, सो दैट वी कुड फोकस ऑन द लॉजिक।
but I want you to go through it once, and I want you to go through it once. ठीक है, मोटा मोटा लॉजिक मैंने सारा यहाँ पे कवर कर दिया, दो दिस still requires a certain amount of refinement, but uh, go through it once and I will explain this all over again. Believe me, मतलब no matter how hard I try, ठीक है, इसको explain करना जो है, this is a very good problem statement. इसको explain तभी करा जा सकता है if you try to focus on understanding what is happening, ठीक है. So I want you to focus on what is happening, ठीक है, and try and understand that, ठीक है. I will take up the doubts also, don't worry, ठीक है. If you have any doubts you can always post them, ठीक है, and I will always take them up, ठीक है. But एक बार इस पे focus करिए क्या लिखा हुआ है. एक बार look at this program, take the next 1-2 minutes to focus on this program, देखने के लिए कि क्या लिखा हुआ है. I will leave this program here in front of you. एक second, just a second, ठीक है. I'll leave, this is the entire program, I'll leave this from in front of you, ठीक है. I want you to think about what has happened here. Take the next 1-2 minutes to think about it. Hmm. ठीक. I'll give another 30 seconds maybe to take a look at this.
ठीक है। सो आई बिलीव मतलब कि दिस माइट बी 20-30% क्लियर टू मोस्ट ऑफ यू, ठीक है। सम पीपल माइट हैव अंडरस्टूड दिस कंप्लीटली, ठीक है। सो मैं एक बार, नाउ दैट यू अंडरस्टूड कि भाई इसका प्रोग्राम कैसे जाने वाला है, ठीक है, आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि भाई अगेन थोड़ा सा कि भाई हाउ वी आर कि हाउ वी आर ट्राइंग टू मतलब सॉल्व दिस। एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। पहले लॉजिक समझिए, उसके बाद ही कुछ समझ में आएगा, ठीक है। एक बार लॉजिक पे चलते हैं पहले, ठीक है। विच इज कि भाई सॉल्व कैसे करते हैं, स्लाइडिंग विंडो काम कैसे करता है यहाँ पे। तो एक बार लॉजिक पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो लॉजिक क्या बोलता है हमारा कि स्लाइडिंग विंडो कैसे काम करता है। तो स्लाइडिंग विंडो ऐसे काम करेगा कि सबसे पहले 0th इंडेक्स पे स्लाइडिंग विंडो बनाते हैं, फिर स्लाइडिंग विंडो को बढ़ाते चलते हैं राइट में, बढ़ाते चलते हैं टिल द टाइम यू यू कम अक्रॉस अ कैरेक्टर दैट गेट्स रिपीटेड, ठीक है। यानी हम स्लाइडिंग विंडो को बढ़ाते चलेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ उसको, होल्ड करिएगा। ठीक है। व्हाट आई वी हैव डन हियर इज दैट हम इस स्लाइडिंग विंडो को बढ़ाते जा रहे हैं। पहले आ गया, पहले इतना बड़ा स्लाइडिंग विंडो था, फिर और बढ़ाया राइट में, फिर और बढ़ाया। एंड नाउ व्हेन वी इनकाउंटर्ड अ कैरेक्टर जहां पे रिपीटिशन आ रहा है, तब जो है उस केस में हम स्लाइडिंग विंडो को छोटा करते चले जाते हैं। यानी अब इतना छोटा किया, ठीक है। और कब तक छोटा करते हैं, तब तक छोटा करते हैं जब तक कि जो कैरेक्टर रिपीट हो रहा है वो डिलीट ना हो जाए। तो यहाँ पे हमने एच डिलीट किया और स्लाइडिंग विंडो को इतना छोटा कर लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर हमने ई को डिलीट किया और स्लाइडिंग विंडो को इतना छोटा कर लिया, बहुत बढ़िया। फिर हमने अभी भी लेकिन कैरेक्टर जो है हमारा मैच नहीं किया है, जो रिपीटेड कैरेक्टर है, मैंने ई को डिलीट किया। फिर हमने एल को डिलीट किया और हमारा स्लाइडिंग विंडो इतना छोटा हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हमने वो कैरेक्टर डिलीट कर दिया जो रिपीट था। तो नाउ व्हाट वी गो बैक टू इज वी गो बैक टू इंक्रीजिंग द स्लाइडिंग विंडो, द साइज ऑफ द इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं भाई। तो अभी हमारा इतना बड़ा स्लाइडिंग विंडो था, हमने इसका साइज को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर मैं आपको प्रोग्राम दिखाऊं और ऐसे कैसे करके हम अगला भी इंक्रीज कर देंगे, फिर इंक्रीज कर देंगे, फिर इंक्रीज कर देंगे, फिर इंक्रीज कर देंगे, वी कीप इंक्रीजिंग टिल द टाइम वी फाइंड अ कैरेक्टर दैट इज रिपीटेड, ठीक है। ये वाला इंक्रीज किया तो रिपीट कैरेक्टर मिल गया, फिर हमने डिक्रीज करना चालू कर दिया, डिक्रीज करना चालू कर दिया, ठीक है। यहां तक डिक्रीज किया, अब हमारे पास कोई भी रिपीटेड कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। सो एग्जैक्टली यही हो रहा है प्रोग्राम में। मैं प्रोग्राम में दिखाता हूँ आपको, हमने सूडो कोड जो लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। लेट मी जस्ट क्लियर द एनोटेशंस। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि भाई वी इंक्रीज द स्लाइडिंग विंडो टिल द टाइम देयर आर नो रिपीट कैरेक्टर्स, ठीक है। और जैसे ही कोई रिपीट कैरेक्टर मिलता है देन वी स्टार्ट डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द विंडो। हम विंडो का साइज बढ़ाते कब है, जब तक हमारे पास यूनिक कैरेक्टर्स हैं तो बढ़ाते रहते हैं। और हम घटाते कब है, जैसे ही हमारे पास कोई रिपीट कैरेक्टर आ गया तो हम घटाना चालू करते हैं जब तक कि वो कैरेक्टर डिलीट ना हो जाए। सो व्हाट यू हैव डन इज कि भाई हमने यही करा है, ठीक है। हमने बोला है कि भाई अगर स्लाइडिंग विंडो में हमने विंडो का हैश मैप भी बनाया कि भाई क्या क्या कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, इसके अंदर सेव कर रहे हैं, सेव करके रख रहे हैं कि क्या क्या कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर हमने बोला कि भाई नया कैरेक्टर चेक किया हमने कि स्लाइडिंग विंडो का लास्ट कैरेक्टर क्या है, मतलब जो कैरेक्टर ऐड हुआ है नया वो क्या है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता हैश मैप में, मतलब कि नया कैरेक्टर है, तो हमने क्या किया कि भाई हमने बोला कि इस कैरेक्टर को ऐड कर दो विंडो में और चेक कर लो विंडो का साइज। अगर विंडो का साइज पुराने हाईएस्ट सबस्ट्रिंग से, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग से ज्यादा है, तो भाई नया सबस्ट्रिंग, नया लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग मिल गया है तुम्हें, ठीक है, ये कर लो। और फिर विंडो का साइज फिर से एक और बढ़ा दो, फिर से एक और बढ़ा दिया। फिर से हमने चेक किया कि भाई क्या ये कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो अगेन न्यू यूनिक कैरेक्टर है, नया कैरेक्टर ऐड हुआ है, फिर से क्या करो, इस कैरेक्टर को ऐड कर लो अपने विंडो में, फिर से साइज बढ़ा दो। और सॉरी, और फिर से अगले कैरेक्टर पर चले जाओ, अगले कैरेक्टर को भी चेक करो क्या नया कैरेक्टर है, बिल्कुल नया कैरेक्टर है। तो भाई क्या करेंगे हम, वापस से विंडो में, अगेन उस विंडो में हम उस कैरेक्टर को ऐड कर देंगे डिक्शनरी में, हैश मैप में। और हम क्या करेंगे, हम लास्ट कैरेक्टर को स्लाइडिंग विंडो को अगेन हम थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। फिर अगले कैरेक्टर पे गए, अगले कैरेक्टर पे क्या गए, हम गए और चेक किया हमने कि भाई क्या ये कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, और इस बार हमें पता चला कि एग्जिस्ट करता है, लेट्स से हमें पता चला कि एग्जिस्ट करता है। देन व्हाट वी डू इज कि अब हम डिलीट करना चालू करेंगे। कब तक डिलीट करना चालू करेंगे, तो वी विल डिलीट टिल, वाइल, टिल, जब तक कि, तब तक जब तक कि भाई जो फर्स्ट कैरेक्टर, यानी जो कैरेक्टर डिलीट हो रहा है, हमेशा फर्स्ट कैरेक्टर जो डिलीट कर रहा है, हम स्लाइडिंग विंडो का पहला कैरेक्टर डिलीट कर रहे हैं हमेशा, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर डिलीट हो रहा है वो लास्ट कैरेक्टर के, यानी फॉर एग्जांपल हमने ये वाला कैरेक्टर रिपीट हुआ हमारा, ठीक है।
हमारा स्लाइडिंग विंडो से HELL था, और मैं LL को कैपिटल में लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा जगह दिखे, ठीक है। HELL था, ठीक है। अब हम यहाँ से डिलीट करना चालू करेंगे। हम कब तक डिलीट करेंगे? हम तब तक डिलीट करेंगे, हम H को पहले डिलीट करेंगे, तब तक डिलीट करेंगे जब तक कि हमें ये L नहीं मिल जाता। तो सबसे पहले हमने H को डिलीट करा, फिर हमने E को डिलीट करा, फिर हमने L को डिलीट करा। अब हम खुश हो गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब हम वापस से स्लाइडिंग विंडो बढ़ाना चालू करेंगे। यानी डिलीशन कब तक करा हमने? वी हैव डिलीटेड while we are deleting till, जब तक कि while द स्टार्टिंग ऑफ द विंडो, यानी ये हमने H डिलीट करेंगे, हम E भी डिलीट करेंगे, हम L भी डिलीट करेंगे, यानी विल डिलीट टिल द स्टार्टिंग ऑफ द विंडो इज नॉट इक्वल टू द लास्ट कैरेक्टर इन द विंडो। तो जो रिपीट कैरेक्टर विंडो का, ठीक है, तब तक हमने डिलीट किया। डिलीट कैसे करते हैं? तो भाई इस इंडेक्स को, स्टार्टिंग इंडेक्स को बढ़ाते चले जाओ। पहले 0 पे था, 0 से E पे आ गया, सॉरी H पे था, फिर H से E पे आ गया, फिर L पे आ गया। और साथ ही साथ हम विंडो को मैप, जो हमने हैश मैप मेंटेन करा हुआ है यहाँ पे, हम यहाँ पे जो हैश मैप मेंटेन कर रहे हैं कि H 1 टाइम्स अपीयर कर रहा है, E 1 टाइम्स अपीयर कर रहा है, L 1 टाइम्स अपीयर कर रहा है, सो ऑन सो फोर्थ। इस मैप में से भी सबसे पहले हमने H को डिलीट किया, हटाया, फिर E को डिलीट किया, हटाया, फिर L को डिलीट किया, हटाया, ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ भाई अगेन जस्ट वन L, ठीक है। एक्चुअली जस्ट वन L, मैंने बोला था आपको कि भाई वाइल लूप एकदम ऑप्टिमाइज नहीं लिखा हुआ, थोड़ा सा मैंने थोड़ा सी चीजें स्किप करी है मैंने, ठीक है। तो हमने डिलीट किया जब तक कि हम सेम कैरेक्टर को मैच नहीं कर जाता, ठीक है। हमने क्या किया? इंडेक्स को अपना बढ़ाते चले गए और हैश मैप के अंदर से कैरेक्टर को डिलीट करते चले गए। कहाँ गया? पूरा डिलीट हो गया, सॉरी, ठीक है। हम हैश मैप के अंदर से कैरेक्टर्स को डिलीट करते चले गए, ठीक है। और फाइनली ये पूरा जब वाइल लूप खत्म हो गया, ये वाइल लूप कब तक चलता है? ये तब तक चलता है जब तक कि भाई विंडो यहाँ तक ना पहुंच जाए, ठीक है। जब ये पूरा वाइल लूप खत्म हो गया तो हमने जो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग था हमारे पास, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स रिटर्न कर दिया है। I hope now that this is clear to everyone. I've explained you the logic also all over again. I have also explained you uh, the pseudocode also all over again. Like I have told you, इसकी भाई थोड़ा सा मैंने while loop में कुछ चीजें skip करी हैं, इसमें भी कुछ चीजें skip करी हैं deliberately. It is not perfect, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, deliberately done so, did so, ठीक है, to be able to explain you the logic without getting into the edge cases या जो भी without getting into the मतलब exact accuracy of things. I hope this is clear to everyone. सबको clear है क्या ये? I hope this is clear to everyone. ठीक है guys, and you will be able to replicate this on your own now, I hope. Hmm. Take another minute to understand this. Some things have been skipped here. जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे कुछ चीजें मैंने skip करी हैं, यहाँ पे भी कुछ चीजें मैंने skip करी हैं, exactly accuracy के साथ नहीं है, ठीक है। I'll just write this tick. Now what you can do is at this point you can also take a screenshot. भाई क्या हुआ ये? Underline कैसे हो गया? If you want, you can take a screenshot of this so that you have something to refer to when you are editing on your own. एकदम सूडो कोड है, काफी मतलब ऐसा नहीं है कि परफेक्ट है, ठीक है। कोड में कुछ प्रॉब्लम्स हैं अभी, ठीक है। दिस इज जस्ट सूडो कोड लाइक आई टोल्ड यू, ठीक है। कुछ पीसेस मैंने लिखे हैं, कुछ पीसेस मैंने स्किप करें। अगर एग्जैक्ट कोड लिखना हो तो मैं एग्जैक्ट कोड आपको VS कोड में लिख के दिखाता, बट आई हैव नॉट रिटन एग्जैक्ट कोड एंड हेंस आई विल राइटिंग इट ऑन योर स्क्रीन हियर, ठीक है। I hope this is clear to everyone. ठीक है. It was a slightly challenging problem, and there is मतलब another challenging problem that we will cover. But हाँ, with this, what I will do is कि भाई मतलब you can take screenshot of this if you want, and if you have any queries, uh, then भाई you will be able to, if you have any queries, you will always be able to raise those queries and we'll be able to cover them, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मैं दोबारा से एक बार बता भी देता हूँ अगर लॉजिक को, ठीक है। भाई नो मैटर, यहाँ जैसे ही आप कोई वर्ड, कोई लेटर ऐसा एनकाउंटर करते हैं
जहाँ पे कोई लेटर रिपीट हो रहा है, व्हाट यू डू इज यू स्टार्ट डिलीटिंग दी और सॉरी और से यू स्टार्ट कटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इन योर स्लाइडिंग विंडो, अपने स्लाइडिंग विंडो में यहाँ से एलिमेंट्स कट करना चालू करते हैं आप, ठीक है। एच कट हो गया, ई कट हो गया, अगेन एल भी कट हो गया, अब बस आपके पास ये एल बच गया, ठीक है। अब इसको बढ़ाते चल जाओगे, ओ भी ले लोगे, टी भी ले लोगे, एच भी ले लोगे, ई भी ले लोगे, आर भी ले लोगे, एंड बस यहाँ तक, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू delete elements from the left hand side, ठीक है। अगर एंड लाइक आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, कि भाई uh, हम्म, second, हाँ, like I told you कि भाई these मतलब एक और क्वेरी मतलब that must be coming up कि जब L and L मैच हो जाएंगे, जो मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया था आपको, ठीक है, कि we had H1 times, ठीक है, we had E1 times, we had L1 times, ठीक है, and फिर we encountered another L, तो हम तीनों डिलीट कर देंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। विच इज वाई आई वांटेड टू टेल यू कि भाई दिस व्हाइल लूप इज नॉट परफेक्ट, इसमें एक केस जो है और मिस्ड है, ठीक है, and deliberately so missed it, ठीक है, so that we could focus on the logic rather than भाई going into मतलब कि सारी चीजें हम कवर करें, हम लॉजिक को मोटा मोटा सूडो कोड में कवर करा है, ठीक है। मतलब we will be covering, we will be coding this in its entirety pretty soon on the lab, so don't worry, but you try to focus right now on the logic rather than कि भाई um, हाँ, ठीक है, rather than कि मतलब rather than the accuracy of this program. This program is not accurate, like I told you, and deliberately so. Take it so that we can focus on logic while ignoring the edges. Maybe take it. I hope this is clear. Hmm. ठीक है. So with this, guys, I will do a thing. Ki we will wrap up the session, and I'll I'll stop sharing of my screen. ठीक है, and with this, guys, what we will do is we will wrap up the session, and we'll be take some time to understand this problem and the solution to the problem, also try to code it by yourselves for a bit, and matlab obviously we'll be solving this questions and having matlab we'll be coding this out um, uh, in a while, but take a good attempt at it by yourself first, and then we'll try to uh, code it together, ठीक है, ठीक है, guys.